Hello guys, welcome on your YouTube channel Compedia. Compedia provides you the question of a confusion examination hall series that have the means of the question of a confusion examination hall series that when the aspirant or teacher approach the question at the time of the examination hall, then somewhere in how minute confusion in their mind. Not often that examinations preparation have weak by student, not that have the very clear and conceptual examination preparation, but after some cases some minute confusion in the mind of the aspirants or competitors that have the solution that Compedia have provide the purified version of the gist of the NCERT, and now our folder is Indian Polity and Constitution. Now we have worked on Indian Polity and Constitution. That have we start our new lecture that आत्यांतिक प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, absolute original, absolute original jurisdiction. There are the two types of original jurisdiction, that absolute original jurisdiction and concurrent original jurisdiction. Now we have discussed absolute original jurisdiction. ऐसे मामले आते हैं आत्यांतिक प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, ऐसे मामले आते हैं जिनकी सुनवाई का अधिकार, जिनकी सुनवाई का अधिकार, जिनकी सुनवाई का अधिकार आत्यांतिक प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहता है एब्सोल्यूट ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, दैट इसके तहत ऐसे मामले आते हैं जिसमें सुनवाई का अधिकार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को होता है। सुनवाई का अधिकार केवल और केवल उच्चतम न्यायालय को होता है। क्लियर करिए। That is the type of the absolute original jurisdiction have the such matter that only hearing power have supremacy, सुप्रीम कोर्ट। मतलब कि भारत सरकार और एक या एक से अधिक क्या पॉइंट है कि भारत सरकार और एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य विवाद, कौन कौन से विवाद आएंगे इसको समझ लीजिए। राज्यों के मध्य विवाद या, और देखिए सबसे पहले हमने बताया what is the absolute original jurisdiction, that has the original jurisdiction, there are two type of original jurisdiction, absolute original jurisdiction and concurrent original jurisdiction. Now we have discussed the absolute original jurisdiction that have the matters that have their hearings only and only at by Supreme Court of India, and भारत सरकार और उसका एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य विवाद को सुनता है कौन सा, आत्यंतिक प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। दूसरा पॉइंट क्या होता है, दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य विवाद, की सुनवाई सिर्फ उच्चतम न्यायालय करता है। Read the absolute original jurisdiction. Now there are two type of original jurisdiction that have absolute original jurisdictions and concurrent original jurisdiction. Now we have explained that some matters that have the hearing powers only governing by Supreme Court of India and for the Indian government एक या एक से अधिक
एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य विवाद, या तो फिर दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य विवाद, उसकी सुनवाई कौन करेगा? सुप्रीमेसी, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय करता है। क्लियर हुआ आपको? व्हाट इज द एब्सोल्यूट ओरिजिनल जुरिडिक्शन? Now we have discussed concurrent, original jurisdiction, समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। Now we have discussed the concurrent, that is C. Concurrent original jurisdiction. What is the meaning of the concurrent original jurisdiction? Now we have revised that. For the absolute original jurisdiction, ऐसे मामले आते हैं absolute original jurisdiction के तहत जिसकी सुनवाई का अधिकार केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट को होता है, उच्चतम न्यायालय को होता है। भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य विवाद, या तो दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य विवाद की सुनवाई सिर्फ उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट करता है। क्लियर? नाउ वी हैव डिस्कस्ड द concurrent original jurisdiction, समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। ऐसे मामले जिनकी सुनवाई का अधिकार देखिए, ऐसे मामले जिनकी सुनवाई का अधिकार उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय, ये समवर्ती है कंकरेंट। उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट, such matters that have the powers of the hearing have Supreme Courts and as well as High Court, दोनों को समान रूप से है, दोनों को समान रूप से है। ऐसे जैसे कौन से मामले हैं? मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, जैसे कि मूल अधिकार से संबंधित मामले, कौन सा मामला है एग्जाम्पल में? फॉर एग्जाम्पल मूल अधिकार से संबंधित मामले। We have discussed the concurrent original jurisdiction that have the समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। ऐसे अधिकार, ऐसे मामले, इनके अधिकारों के तहत ऐसे मामले जिनके अंदर सुनवाई का अधिकार, जिसके तहत सुनवाई का अधिकार उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को समान रूप से हो। जैसे कि कौन सी सुनवाई? जैसे कि हमने मान लिया मूल अधिकार से संबंधित मामले, जैसे कि मूल अधिकार संबंधित मामलों की सुनवाई, और तो इसको बोलते हैं समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। और देखते हैं हम ऊपर, ये आपने नोट कर लिया होगा आध्यात्मिक का, इसको मैं मिटा रहा हूं और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं समवर्ती कंकरेंट। नीचे हेडिंग है, कंफ्यूज मत होइएगा। नीचे हेडिंग है, सेकंड नंबर पड़ा हुआ है, हेडिंग नंबर 2, कंकरेंट ओरिजिनल जुरिडिक्शन। कंकरेंट ओरिजिनल जुरिडिक्शन
कॉन्करेंट ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। इसमें क्या पॉइंट है? मूल अधिकारों को उल्लंघन में पीड़ित व्यक्ति, मूल अधिकारों के उल्लंघन में पीड़ित व्यक्ति, देखिए सुनवाई का अधिकार होगा, पीड़ित व्यक्ति उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट या उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, दोनों में से किसी भी न्यायालय में, दोनों में से किसी भी न्यायालय में। नाउ राइट डाउन ऑन योर notebook that have the important conceptual procedure that we have discussed. Concurrent original jurisdiction that are the ऐसे मामले, जैसे कि हमने मान लिया मूल अधिकारों के उल्लंघन में पीड़ित व्यक्ति की बात करें तो वो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, मतलब कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, दोनों में से किसी भी न्यायालय में, इन दोनों न्यायालय में से किसी भी न्यायालय में वाद लाने के लिए स्वतंत्र है, वाद लाने के लिए स्वतंत्र है। That are the mode of my education platform is that online, that if you have not clearly seen that matter, that you have listen my voice. My voice is already clear. My voice is already clear because my connection is very clear. That if the region of the blackboard is so far or so distant that you have listened my voice clearly. My voice have clearly explained the defined headings or defined matter. That you will clarify by my voice. बहुत ही दूर होता है व्हाइट बोर्ड, ऑनलाइन मोड में हम पढ़ा रहे हैं, हो सकता है व्हाइट बोर्ड पे आपको न दिख रहा हो, क्लियर ना हो रहा हो, किसी भी इंटरनेट कनेक्शन की वजह से, ब्लर इमेजेस वीडियो की वजह से अगर आप क्लियरली सीन नहीं कर पा रहे हैं, यू हैव फॉलो माय वॉइस हैव क्लियर दैट मूल अधिकारों के उल्लंघन में पीड़ित व्यक्ति हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में से किसी भी न्यायालय में वाद लाने के लिए स्वतंत्र है। देखिए लिखा है वाद लाने के लिए स्वतंत्र है। क्लियर? कॉन्करेंट ओरिजिनल जुडिक्शन। इन अधिकारों के संबंध में अनुच्छेद 32 इन अधिकारों के संबंध में आर्टिकल 32, विच आर्टिकल? आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 किन अधिकारों के संबंध में? दैट आर कॉन्करेंट ओरिजिनल जुडिक्शन, दैट आर we have discussed about the fundamental rights। तो इन अधिकारों के संबंध में अनुच्छेद 32 के तहत अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट उच्च न्यायालय और आर्टिकल 32 के तहत उच्चतम न्यायालय, दोनों की शक्ति दी है, दोनों की शक्ति दी गई है। नोट डाउन करिए अपनी नोटबुक पे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, such a very glorious and grand topic that have studied today.
We have discussed the concurrent origin jurisdiction that have in the concurrent origin jurisdiction we have that समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार we have discussed that ऐसे मामले जिनकी सुनवाई का अधिकार उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय दोनों को समान रूप से होता है, जैसे कि मूल अधिकारों से संबंधित मामलों की बात हम करते हैं। तो मूल अधिकारों के उल्लंघन में पीड़ित व्यक्ति उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय दोनों में से किसी भी न्यायालय में वाद लाने के लिए स्वतंत्र है। और इन अधिकारों के संबंध में अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय और आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय हाई कोर्ट दोनों की शक्ति दी गई है, That had the final conclusion of today's topic. That we have complete our present scenario, concurrent origin jurisdiction. Now, if the video have impressive, video have knowledgeable, video have that what can you observe from this video, and how can you observe from this video? That have I supposed that some important questions are surely depend on that important lecture scenario or folders. That have we start the important folder that Indian Polity and Constitution, which is very necessary and very important part of your preparation. That have UPSC, SSC, State PCS, one day and all mains examination. If you are a serious aspirant, if you are a serious competitor, if you are a serious educational warrior, if you are a serious educational soldiers, that you have add with YouTube channel Comptedia. If you like this video, then like, share and subscribe Comptedia. सभी पढ़ें, सभी बढ़ें। मुक्त शिक्षा आपके द्वार, क्या आप है तैयार? Study hard and get success. Study harder and harder and achieve your goal. That have the main motto of the YT channel Comptedia. Comptedia have provides the education at par and the whole worldwide, India as well as the whole world. The free education conceptual channels. Now our present folder is Indian Polity and Constitution, which is very complicated and very confusing topics such as the daily practice of the aspirants or examinees. That have the more complicated constitutional and political bodies and political matters, and the IR, that international relations, have joined together and to make a such difficult question paper that when you observe that the original version of the gist of the NCERT, then you have tracked that, you have imagined. अगर आप NCERT के सारे पूरे निचोड़ के वर्जन को पढ़ते हैं तो हम जो कक्षा 6 से 12 तक जो भी पढ़े हैं, जो भी बेस है, जो भी मूल है, जो भी रूट है, ये सारे क्लियर हो जाते हैं। ऐसे ही रूट्स को क्लियर करने के लिए ये क्रिएटिव माइंड आया कॉम्पिटिटिव के पास कि क्यों ना हम ऐसे क्वेश्चंस को ट्रैक करें और ऐसी फ्रेमिंग करें वीडियोस की, इस प्रकार की हो जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने के साथ ही साथ एक हमारे बेस को भी मजबूत करे। तो ऐसे हमने सब्जेक्ट चुना इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन को। तो भारत की राजनीतिक व्यवस्था और भारत के संवैधानिक ढांचे से संबंधित हम राज्य व्यवस्था ये इस महत्वपूर्ण फोल्डर को लेकर चल रहे हैं और पूरी कोशिश है कि पूरी जान लड़ा देंगे, पूरी ताकत झोंक देंगे और मैं पूरी ताकत लगा रहा हूँ इस पूरे सब्जेक्ट में और इसका परिणाम बहुत ही जल्दी आपके सामने होगा। देखेंगे आप किस प्रकार से एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस फंसेंगे और हमारा पूरा प्रयास रहता है कि हर एक टॉपिक पे, हर एक बिंदु पे पूरी तरीके से क्लैरिफाई कर दें, वो कैनवस ही हट जाए जो कि कंफ्यूजन का हो। दैट वी हैव क्रैक द सम कैनवस ऑफ द कंफ्यूजन। एक तो चादर चढ़ी है दिमाग में कंफ्यूजन की, तो डिप्रेशन की, उसको तोड़ने के लिए ही आया है कॉम्पिटिटिव फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म। और हमारा पूरा प्रयास है कि सारे यूट्यूब उपयोगकर्ता
और साथ ही साथ जो भी विद्यार्थी ज्ञान पिपासु हो, ज्ञान पिपासु को तो जो एब्जॉर्ब करना चाहते हैं नॉलेज को, वो सिर्फ एक स्मार्टफोन और डेटा की मदद से फ्री एजुकेशन उनको मिल सकता है। दैट हैव आई ट्राई टू माय बेस्ट परफॉर्मेंस फॉर दिस फोल्डर Indian Polity and Constitution. Now, if the interesting lecture, if you have feel that the lecture is interesting and knowledgeable, that you will like Comteria, share Comteria and press the bell icon and subscribe more and more times. और लोगों को बताइए कि Comteria का एजुकेशन चैनल है, एक ऐसा YT चैनल है जो कि मुफ्त शिक्षा आपके तक पहुंचा रहा है और इसका प्रोजेक्ट फोल्डर चल रहा है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। और भी काफी विषयों के लेक्चर्स, तकरीबन 1000 लेक्चर हमने अपलोड कर दिया है Comteria पे। आप सारे विषयों को देखिए, जो जो विषय आप छाट सकते हैं उसमें इंडियन पॉलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, सोशियोलॉजी है, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी है, मेडिवल, एंशिएंट, मॉडर्न हिस्ट्री है, जितने भी विषय तक मैंने, एजुकेशन है, इकोनॉमिक्स के भी कुछ लेक्चर। तो आप देखिए करंट अफेयर्स के लेक्चर, कई पुराने एग्जाम्स के पेपर सॉल्व हैं, बीपीएससी के भी कुछ क्वेश्चन पेपर से देखिए, सब मैंने फ्रेम किए हैं, हर चीज़ों को मैंने समझा है, उसको तराशा है और इस वाइड प्लेटफॉर्म पर उतारा है। तो सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़िए। आप जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे उतना मेरे अंदर एक एनर्जी पैदा होगी और मैं बहुत ही परिष्कृत और बहुत ही प्योरीफाइड एकदम छान दूंगा पूरी एनसीईआरटी को, और ऐसे लेक्चर्स आपके सामने प्रस्तुत करूंगा कि छठ से चुटकी में कंपटीशंस में जो भी पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन आएंगे निश्चित फंसने हैं, वो ट्रैक होंगे ही होंगे। वो ऐसा बैरियर है जो इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन को मैं वर्क कर रहा हूँ, मैं अच्छे से अच्छे लेक्चर दूंगा और पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि प्योरीफाइड वर्जन ऑफ द जीस्ट ऑफ द एनसीईआरटी जो मैं बोलता हूँ वो वाकई में ही प्योरीफाइड वर्जन आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकूं। इसी सभी शब्दों के साथ आप सभी लोग जोश के साथ, हिम्मत के साथ, पूरी कॉन्फिडेंस के साथ और सीना ठोक के एग्जामिनेशन में बैठिए कि आपने Comteria से एजुकेशन किया है। और एजुकेशन बिल्कुल फ्री है, किसी प्रकार का चार्ज या कॉस्ट देने की हमें जरूरत नहीं है। हमारा पूरा प्रयास है कि सशक्त भारत और सशक्त मुक्त शिक्षा का प्लेटफॉर्म हम यूट्यूब पे प्रोवाइड करा रहे हैं और मैं पूरा प्रयास करता हूँ, यथाशक्ति यथासंभव प्रयासरत रहूँगा और दूंगा आपको इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के ऐसे ही मज़ेदार लेक्चर, क्योंकि इंटरेस्टिंग होगी और महत्वपूर्ण मोटिवेशनल बूस्टर ब्लॉग जो मैं देता हूँ उससे एक आपके अंदर जो मायूसी है, जो उदासी है, वो भी दूर हो जाती होगी। आप लोग देखते होंगे शॉर्ट्स फॉर्मेट में एजुकेशनल बूस्टर लेक्चर्स भी लगाता हूँ, उससे आप मोटिवेट होइए और फिर लेक्चर्स को देखिए और उसके बाद पूरी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर Comteria चैनल यूट्यूब पर आपके साथ खड़ा है। सारे एस्पिरेंट्स और सारे कम्पिटिटर्स को हम धन्यवाद करते हैं, उनके साथ हमेशा खड़े हैं। बने रहे, जमे रहे आपके अपने महत्वपूर्ण चैनल Comteria पे। आज का लेक्चर यहीं तक, अगले महत्वपूर्ण लेक्चर के साथ फिर आपके साथ हम प्रस्तुत होंगे और एक अच्छा प्रेजेंटेशन देंगे इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन का। तो तक के लिए जय हिंद, जय भारत।